ناظرین السلام علیکم۔ روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ دوسرے یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسرے یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ متحدہ اضلاع میں مجاہد آزادی نیتا جی سبھاش چندر بوس کی سالگرہ تقریب کو جوش و خروش کے ساتھ انعقاد عمل میں لایا گیا۔ شہر نظام آباد کے گاندھی چوک کے علاقے میں پیش آیا خوفناک سڑک حادثے میں 2 نوجوان برسری موقع ہلاک۔ ٹیآرایس پارٹی کو مستحکم بنانے کے لیے دیہی کمیٹی ممبران سخت محنت کرنے کا ماکلون منڈل میں منعقدہ اجلاس سے ایم پی پی ماسٹر پربھاکر کا خطاب۔ حیدرآباد میں رہائش پذیر ایم ایل سی کے کویتا سے SSR تعلیمی ادارے چیئرمین ماریا گوڈ نے ملاقات کرتے ہوئے دی مبارکباد۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ مکتب تجوید القرآن میں ایک طالب ابو محظورہ کا آغاز قرآن و تقسیم یونیفارم پروگرام۔ اپنی بچوں اور بچیوں کی دینی تعلیم و تربیت کی جانب والدین خصوصی توجہ دیں۔ مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء دونوں جمعیت علماء کے صدور مولانا سید سمیع اللہ و حافظ لئی خان کے علاوہ مولانا ارشد علی قاسمی نے کی مسلمانوں سے اپیل۔ اس موقع پر مولانا عبدالحفیظ صاحب کے فرزند کا ناظرہ قرآن شروع کیا گیا اور طلباء و طالبات میں یونیفارم تقسیم کرتے ہوئے ذمہ داران کو مبارکباد دیتے ہوئے مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی نے کہا کہ آج بچوں کی دینی و تعلیم تربیت پر توجہ دینا وقت کا اہم ترین اور اولین تقاضا ہے۔ نیز بچوں کو دینی تعلیم کا شوق و ذوق پیدا کرنے کے لیے مختلف قسم کی ترغیبات پیش کرنا چاہیے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ دنیا کی عمدہ سے عمدہ تعلیم دلوائے مگر دینی تعلیم کی عظمت و اہمیت بچوں کے دلوں میں بٹھائے، ان کو مکاتب سے جوڑے۔ یومیہ صبح یا شام کے مکاتب کو منظم بناتے ہوئے امت مسلمہ کے نونہالوں کے ایمان و عقائد کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں جس محلے میں بھی علماء حفاظ محنت کریں ان کی ہمت افزائی کریں۔ تلنگانہ کے بیشتر اضلاع میں سردی کی لہر جاری۔ تلنگانہ کے بیشتر اضلاع میں سردی کی لہر جاری اور گزشتہ چند دنوں سے درجہ حرارت میں گراوٹ ہو گئی ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ گزشتہ 3 سال کے مقابلے اس مرتبہ سردی کی لہر میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسری طرف چہل قدمی کرنے والوں نے بھی اس اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سردی سے بچنے اور مامورین شدید متاثر ہیں۔ صبح کے اولین ساعتوں سے ہی سرد ہوائیں چل رہی ہیں۔ اسپتالوں میں مریضوں کا ہجوم ہے۔ نزلہ، کھانسی، زکام اور بخار میں کئی افراد مبتلا ہیں۔ گرم ملبوسات کی خرید و فروخت میں زبردست اضافہ ہو گیا ہے۔ عوام سویٹرز، ٹوپیوں اور مفلرز کا استعمال کر رہے ہیں۔ صبح اور شام کے اوقات میں ضلع کے بیشتر مقامات پر لوگ آگ تاپتے نظر آ رہے ہیں۔ صبح کے اوقات میں کوہر کی وجہ سے گاڑی سواروں کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کئی گاڑی سوار اپنی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کو کھولتے ہوئے گاڑی چلانے پر مجبور ہیں۔ دوسری طرف صبح کے اوقات میں چہل قدمی کے لیے جانے والے افراد اور کسان اپنے معمول کے شیڈول کے برخلاف تاخیر سے اپنے کاموں اور سرگرمیوں کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف فٹ پاتھس پر سونے والے افراد کو بھی سردی کی وجہ سے کافی مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ ٹیآرایس پارٹی کو مستحکم بنانے کے لیے دیہی کمیٹی ممبران سخت محنت کرنے کا ماکلون منڈل میں منعقدہ اجلاس سے ایم پی پی ماسٹر پربھاکر کا خطاب۔
माकरून मंडल सदर बड़गू सत्यम की ज़ेर निगरानी में मुनक़दा इजलास में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर MPP मास्टर प्रभाकर ने शिरकत करते हुए कहा कि TRS दही कमेटी मेंबरान TRS पार्टी को मुस्तहकम बनाने के लिए सख्त मेहनत करते हुए तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में PUC कमेटी चेयरमैन आर्मर MLA जीवन रेड्डी की काविशों के सबब मुनक़दा तरक्याती कामों के मुतालिक मुकामी अवाम को मालूमात फराहम करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा स्कीमात से अवाम को रास्त तौर पर फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में नोडा डायरेक्टर अकुला राजनेश, कॉर्पोरेटर राजू सिंह व दीगर ने शिरकत। కింది స్థాయి నుండి ప్రతి కార్యకర్త కానీ విలేజ్ అధ్యక్షులకు కానీ ప్రతి ఒక్కరిని పిలిచి ఇక్కడ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పటి నుంచి అందరం కలిసికట్టుగా పనిచేసి పార్టీ కొరకు అలాగే అన్న ఎమ్మెల్యే గారి జీవనన్న గురి కొరకు మళ్ళీ ఒకసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించుకొని మినిస్టర్గా చూడాలనుకుంటున్న మన మండల కార్యకర్తలకు शहर के सुभाष नगर में मुनक़दा सुभाष चंद्र बोस की सालगिरह तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने शिरकत करते हुए इनके मुजस्समे पर पेश की गुलाय अक़ीदत। शहर के सुभाष नगर में मुनक़दा सुभाष चंद्र बोस की जयंती तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने शिरकत करते हुए पहले मरहले के तौर पर इनके मुजस्समे पर फूलों का हार पहनाते हुए भरपूर तरीके से ख़िराज अक़ीदत पेश की। बातज़ा इन्होंने खिताब करते हुए सुभाष नगर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक तवील तारीख रखने की बात बताते हुए कहा कि 1956 में कुछ अफराद की जानिब से कमेटी का क़याम अमल में लाकर इसे अच्छा वेंचर बनाने की तारीख रखने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सुभाष नगर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के खजांची राजेंद्र रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। లో భాగంగా మరి ఆ రోజు విశాల ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణను మరి ఆంధ్రను కలిపిన రోజు మరి అదే రోజు ఇక్కడికి వచ్చి వెళ్ళిండు. మరి ఈ చరిత్ర మరి మనం తెలుసు, చూస్తూ ఉన్నాం. కేసీఆర్ గారు ఈ విషయం చెప్తా ఉంటారు. ఇది నిజామాబాద్లో మరి మన సుభాష్ నగర్లో ఈ పాలిటిక్ నగర్లో జరిగిన విషయం. మరి ముందుగా చూస్తూ ఉంటే మరి విషయం చెప్పాలంటే గొప్పగా సుభాష్ నగర్ది ఇది 1956లో అప్పుడు కొందరు కమిటీగా ఏర్పడి సుభాష్ నగర్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ సొసైటీగా ఏర్పడి మరి ఆ రోజు గవర్నమెంట్ నుంచి ఒక 15 ఎకరాలు లీజు తీసుకొని మరి ఆ రోజు 1956లోనే దీన్ని వెంచర్ చేశారు. మంచి డ్రాఫ్ట్ వెంచరు. ఎందుకంటే సువిశాలమైన రోడ్లు మరి ఒక 5 మున్సిపల్ గార్డెన్స్ కోసం కూడా వదిలినారు. కాబట్టి దీనికి సుభాష్ నగర్ आर्मर शहर के TRS कायदीन MLA कैंप दफ्तर में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं सालगिरह तकरीब को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया। आर्मर शहर के TRS कायदीन MLA कैंप ऑफिस पर सुभाष चंद्र बोस की 125वीं यौम पैदाइश तकरीब के पेश नज़र इनकी तस्वीर पर फूलमाला पहनाते हुए भरपूर तरीके से ख़िराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर सिटी सदर नरेंद्र व सीनियर कायदीन ने कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी दिलाने के लिए इनकी जानिब से फ़राहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार देते हुए हर एक नौजवान इनके नक्श कदम पर चलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन काशीराम, पंडित प्रेम, रवि, हनुमंतु, नरेश, शेखर, శ్రావణ్ व दीगर ने शिरकत। ఆర్మర్ ఎమ్మెల్యే డైనమిక్ ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి రాజేశ్వరన్న ఆదేశాల మేరకు ఏదైతే సుభాష్ చంద్రబోస్ ఆజాద్ హిందూ ఫౌజ్ని ఏర్పాటు చేశారో ప్రతి ఒక్కరికి ఇంప్రెషన్ గా ఆనాడు బ్రిటిష్ వారి గుండెల్లో రైలు పరిగణించిన ఇలాంటి మహా నేత గారికి ఈ రోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ वेलपुर मंडल मौज़िल अकुरा की कौमी शाहरा पर तेज रफ्तार RTC बस ने मुखालिफ सिम से आने वाले ऑटो को टक्कर देने के बाइस एक दिलखराज सड़क हादसा पेश आया। जिले निजामाबाद मौज़े वेलपुर मंडल मौज़िल अकुरा के कौमी शाहरा 63 पर एक वाक़ई ग्राम पंचायत के पास एक दिलखराज सड़क हादसा पेश आया। जाए मौके पर 2 अफराद की मौत वाक़ई हो गई। तफसीलात के मुताबिक मौज़िल अकुरा के कौमी शाहरा 63 पर वाक़ई ग्राम पंचायत के पास एक RTC वरंगल से निजामाबाद आ रही थी। इस बस ने मुखालिफ सिम से आने वाले एक ऑटो को टक्कर दे दी। इस ऑटो में सवार 4 मुसाफिरों में से 2 अफराद की बरसरे मौत हो गई। वो दोनों शदीद जख्मी होने की बिना पर फौरी तौर पर निजामाबाद सरकारी दवाखाने मुंतकिल किया गया। तला मिलने पर पुलिस मुलाजमीन मौके वारदात का तफसीली तौर पर जायजा लेते हुए मुकदमा दर्ज किया। इस मौके पर वेलपुर SI राज भरत रेड्डी ने कहा कि RTC बस की रफ्तार बहुत तेज थी जिसके सबब यह हादसा पेश आने की बात बताते हुए कहा कि ऑटो में जो सवार मुसाफिर थे वो मेटपल्ली से ताल्लुक रखते थे, जिनमें एक का नाम पोसानी तिरुपति के अलावा इनकी बीवी और एक शख्स का नाम मालूम ना हो सका। इनमें पुसानी और तिरुपति की मौके पर ही मौत होने का इजहार करते हुए तिरुपति के बीवी की शिकायत पर पुलिस मुलाजमी ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। इन्होंने पोस्टमार्टम के लिए आर्मर सरकारी दवाखाने मुंतकिल किया।
मोरताड़ के सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस CH मोतियम राजू ने तेजस डिफेंस एकेडमी कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में लाई। जिले निजामाबाद बालकुंडा अलखसमली मंडल के मुकाम पर वाक़ मोरताड़ पुलिस स्टेशन में सहायक के तौर पर ओहदे का जायजा लेने वाले सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस CH मोतियम राजू ने तेजस डिफेंस एकेडमी कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में लाते हुए कहा कि एकेडमी को कायम हुए सिर्फ 10 साल में नेवी, आर्मी, एयरफोर्स और दीगर सेक्शन में तकरीबन 1500 मुलाजमीन हासिल करने को काबिल खुश आइन बात करार देते हुए डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले सतीश राव की खिदमत को काबिल सताइश करार देते हुए मुबारकबाद पेश की। बात जायज़ाई के तौर पर ओहदे का जायजा लेने वाले इस्ताई को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में नागराव, संजीव, साईनाथ, अब्बाना, महादेव और दीगर ने शिरकत की। मोरताड़ मंडल मौजे धर्मुरा हेल्थ वर्कर्स का गुज़िश्ता 3 यौम से फीवर सर्वे जोरों शोरों से जारी। जिले निजामाबाद बालकुंडा अलखसमली के मोरताड़ मंडल मौजे धर्मुरा में रियासती वजीर विमल प्रशांत रेड्डी व जिले कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक मुकामी सरपंच व नायब सरपंच के जेर निगरानी में आशा वर्कर्स ANM म्यूनसिपल ग्राम पंचायत अमला वार्ड टीम से तश्कील अमल में लाकर गुज़िश्ता 3 यौम से फीवर सर्वे के तहत हर एक घर से रुजू होकर अफराद खानदान में मौजूद अफराद में खांसी बुखार की निशानदही करके इन्हें आइसोलेशन किट देते हुए कोविड की तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए कोविड-19 उसूल और ज़ाबित के मुतालिक शोर बेदारी अमल में ला रहे हैं। और इसी तरह से हर रोज आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी कारकुन, ANM हर गांव में फीवर सर्वे करते हुए खांसी, बुखार व दीगर अमराज से मुतासर अफराद को इलाज करते हुए सेहत से मुतालिक मुफ्त अद्वियात की फराहमी अमल में लाकर तमाम मालूमात हासिल कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच B जनार्दन, MPTC G लावण्या, सेक्रेटरी श्रीनिवास, कारोबार सायन्ना व दीगर ने शिरकत की। గౌరవనీయులు కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల ప్రకారం ధర్మవరం గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో సర్పంచ్ గారు శ్రీ మండల రాజేశ్వర గారి ఆధ్వర్యంలో ఇంటింటికి ఆరోగ్య సర్వే చేయడం జరుగుతున్నది. మన ధర్మవరం గ్రామానికి వచ్చి 633 హౌస్ హోల్డ్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో నిన్న ఈరోజు కలిపి మనకు మొత్తం 412 ఇల్లు కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. बालकुंडा अलखसमली मोरताड़ मंडल के पालेम देहात में रियासती वजीर विमल प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा CMRF चेक्स की मुकामी सरपंच B एनुगु गंगाधर के हाथों मुस्तहिकीन में फराहमी अमल में लाई गई। जिले निजामाबाद बालकुंडा अलखसमली मोरताड़ मंडल के पालियम देहात में मुकामी सरपंच बदम एनुगु गंगा रेड्डी ने रियासती वजीर इमारत शोरा विमल प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर करदा CMRF चेक्स की इस्तिफादा कुनगान में फराहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए दीगर अवामी नुमाइंदों ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़ियादत में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत फवायद पहुँचाते हुए सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम के इलाज व मुआलजे के अखराजात की अदायगी के लिए CM KCR ने CM रिलीफ फंड स्कीम मुतारफ किया है, जिसके तहत ऐसे अफराद जिनका इलाज प्राइवेट दवाखानों में जारी है और वो कसीर मकदार में रुपयों का बंदोबस्त नहीं कर सकते, ऐसे अफराद को चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव की जानिब से CM रिलीफ फंड से रकम मंजूर की जाती है ताकि इनके इलाज व मुआलजे में काम आ सके। इस प्रोग्राम में इस्तिफादा कुनगान ने रियासती वज़ीर आला KCR और रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। 118 असम्बली हलकों में दलित बंधु स्कीम पर अमल करने का ऐलान। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने रियासत के 118 असम्बली हलकों में दलित बंधु स्कीम पर अमल करने का फैसला किया है। रियासती वज़ीर SC बहबूद के ईश्वर ने करीमनगर के कलेक्ट्रेट से तमाम अजला के कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। आरजी सेक्रेटरीट BRK भवन हैदराबाद से चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार, चीफ मिनिस्टर ऑफ सेक्रेटरी राहुल बूजा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। वजीर SC बहबूद के ईश्वर ने बताया कि असम्बली हल्का हुजूराबाद से दलित बंधु स्कीम का आगाज हुआ है, जिसको हुकूमत ने तमाम अजला में तोसी देने का फैसला किया है। रियासत के हर एक असम्बली हल्के से 100 SC तबकात को इस स्कीम से फायदा पहुँचाया जाएगा। इन्होंने तमाम कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो मुतालिका जिले के अरकान असम्बली और अहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए 5 फरवरी तक अहल उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार कर लें। 7 मार्च को तमाम मुंतखब अहल उम्मीदवारों के बैंक खातों में फीकर 10 लाख रुपए जमा करने की कलेक्टर्स को हिदायत दी है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि अहल SC अफराद की 5 फरवरी तक निशानदही करते हुए इनके बैंक खाते खोलने की हिदायत, साथ ही इन्हें खुद रोजगार से वाबस्ता करने के लिए यूनिट्स के इंतखाब में शोर बेदारी करने पर जोर दिया। एक नजर वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान
हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। निजामाबाद के गांधी चौक के करीब भयानक सड़क हादसा, 2 नौजवान हलाक। निजामाबाद शहर में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 2 नौजवानों की दुकान को टकरा जाने से मौत हो गई। यह हादसा निजामाबाद के आरपी रोड से गांधी चौक जाने वाले रास्ते में पेश आया। बताया जाता है कि निजामाबाद के नगराम से ताल्लुक रखने वाले 2 नौजवान 27 साल विशाल और 21 साल राजू पल्सर बाइक पर किसी काम से गांधी चौक जा रहे थे कि दरमियान में बल्दी की जानिब से सड़क पर खोदे गए गड्ढे में तेज रफ्तार बाइक गिर पड़ी और 2 नौजवान सामने वाक़े दुकान के शटर से टकरा गए, जिसके नतीजे में इन दोनों की मौत वाक़ हो गई। बालकुंड हल्के के दीगर मनादिर व कल्याणा मंडप की तामीर के लिए जारी करदा फंड से मुतालिक चेकों की रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अवामी नुमाइंदों की मौजूदगी में बिरादरी तबके से ताल्लुक रखने वाले अवाम व मनादिर कमेटी के मेंबरान को किया हवाले। बालकुंड हल्के में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दीगर मनादिर व कल्याणा मंडप की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए जारी किए गए चेकों को रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने वेलपुर में अवामी नुमाइंदों की मौजूदगी में बिरादरी तबके से ताल्लुक रखने वाले अवाम व मनादिर कमेटी के मेंबरान को हवाले किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद सीएम केसीआर की क़यादत में दीगर मनादिर व कल्याणा मंडप की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने को काफी खुशाइन होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मोरदान मंडल के ZPTC बदम रवि, वाइस MPP तोगिटी श्रीनिवास, पालियम सरपंच एनुगु बदम संतोष, नायब सरपंच P रवि, साबिक MPTC अशोक, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन M आरिफ, मंडल पार्टी सदर, ZPTC MPP, सरपंच, MPTC मनादिर कमेटी के मेंबरान, मंडल की कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। हैदराबाद में रिहाइश पजीर MLC के कविता साहिबा से SSR तालीमी इदारे के चेयरमैन मारैया गौड़ ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। मुत्तहदा जिला निजामाबाद MLC के कविता के हैदराबाद में वाक़ रिहाइशगाह में SSR तालीमी इदारे के चेयरमैन मारैया गौड़ ने मुलाकात करते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश करके मुबारकबाद देते हुए MLC के कविता साहिबा को मुस्तकबिल में मज़ीद आला ओहदे पर फाइज होकर अवाम की ताहियात तक खिदमत करने का इजहार किया। जारी साल SSC के इम्तहानात वक्त मुकर्ररा पर मुनक़िद करना मुश्किल, तातीलात में तोसी, निसाब के अदम तकमील, अदखाल फीस की तारीख में तोसी। 10वीं जमात के इम्तहानात का इनेकाद जारी साल भी शेड्यूल के मुताबिक मुनक़िद होना मुश्किल नजर आ रहा है। मौजूदा हालात कोरोना की तीसरी लहर से पैदा शुदा हालात में शेड्यूल के मुताबिक इम्तहानात को मुनक़िद करना हक्काम के लिए मुश्किलात का सबब बन गया है। तालीमी इदारों की दोबारा कुशादगी के मुतालिक हुकूमत ने ताहल कोई ख़तई फैसला नहीं किया है। इसके अलावा स्कूल्स में जमातों के इनेकाद पर भी कोई फैसला नहीं लिया गया। आया क्लासेस फिजिकल इंडेक्स के लिहाज से मुनक़िद की जाएगी या फिर ऑनलाइन जरिए तालीम को जारी रखा जाएगा, चूँकि इन हालात में निसाब की तकमील इम्तहानात के इनेकाद के लिए अहम रुकावट बन सकती है। इन हालात के पेश नज़र मार्च के बजाय अप्रैल के आखिरी हफ्ते में इम्तहानात का इनेकाद अमल में लाया जा सकता है। दर हकीकत सरकारी मदारिस में जनवरी के आखिरी हफ्ते तक 60% निसाब की तकमील होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ 50% निसाब की तकमील होने का अहलदार दावा करें। ऐसी सूरत में इस कोर्स की दोबारा कुशादगी के बाद भी फरवरी के दूसरे हफ्ते में क्लासेस का आगाज होने के भी कम इम्कानात पाए जाते हैं। साइंस, रियाजी और समाजी इल्म के अहम तरीन मज़ामीन की तकमील और इसके रिवीजन की तकमील के बाद ही तलबा आसानी से इम्तिहान में शिरकत कर सकते हैं। निसाब की अदम तकमील और संक्रांति की तातीलात का तालीम पर असर पड़ने का सातिज़ा ख्याल जाहिर कर रहे हैं। बताया जाता है कि इन हालात को देखते हुए 10वीं जमात के इम्तहानात की फीस दाखिल करने की तारीख में तोसी करने से डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने रजामंदी जाहिर की। दरअसल 29 जनवरी को फीस अदखाल की आखिरी तारीख मुकर्रर थी। तातीलात में तोसी के सबब असातिज़ा की अदम दस्तियाबी और यूनियनों की नुमाइंदगी पर तोसी का इम्कान है।
मनोरमा हॉस्पिटल में इस माह की 24 तारीख से एक हफ्ते तक मुफ्त स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद अमल में लाने का यूवीकेन रियासती वॉलंटियर सुजन कुमार ने मीडिया के जरिए किया इजहार। जिले निजामाबाद के मनोरमा हॉस्पिटल में यूवीकेन रियासती वॉलंटियर सुजन कुमार ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि सर्विकल कैंसर के मुतालिक मनोरमा हॉस्पिटल में इस माह की 24 तारीख से एक हफ्ते तक मुफ्त स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। लिहाजा मुकामी अवाम मुफ्त स्क्रीनिंग कैंप से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की इस प्रोग्राम में तिब्बी अमला रमा देवी। నమస్తే ఈరోజు అంటే మామూలుగా ప్రతి సంవత్సరం జనవరి క్యాన్సర్ సర్వీక్స్ అంటే గర్భసంచి ముఖద్వారానికి వచ్చే క్యాన్సర్ గురించి అవగాహన చెప్తుంటాము. సో ఈసారి మనోరమ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ డాక్టర్ చైతన్య గారు ప్లస్ యూవి ఫౌండేషన్ సహకారంతో మేము ఈ ఒక వారోత్సవాలు ఈ క్యాంపు నిర్వహించడం జరుగుతుంది వారం రోజుల పాటు. దీంట్లో భాగంగా మనోరమ హాస్పిటల్, యూవికెన్ ఫౌండేషన్ మరియు శ్రీ పితామహ క్యాన్సర్ కేర్ హాస్పిటల్ వారి ఆధ్వర్యంలో వారం రోజుల పాటు సర్వికల్ క్యాన్సర్కి సంబంధించిన కాల్పోస్కోపీకి సంబంధించిన టెస్టులు మరియు ప్యాప్స్మియర్కి సంబంధించిన టెస్టులు ఫ్రీగా చేయబడతాయి. 31 जनवरी तक जुलूस, इज्तिमात और रैलियों पर पाबंदी में तोसी, मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासले को यकीनी बनाने की हिदायत। सरकारी अहकामात। हुकूमत तेलंगाना से 1 जनवरी को जारी किए गए GOMS में मौजूदा शराइत में दूसरी मरतबा तोसी का फैसला करते हुए इन शराइत को 31 जनवरी तक बरकरार रखने का फैसला किया है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में हो रहे इजाफे को देखते हुए रियासती हुकूमत ने 1 जनवरी को अहकामात जारी करते हुए इब्तिदा में 10 जनवरी तक रियासत भर में जलसे, जुलूस, इज्तिमात के अलावा रैलियों पर पाबंदी आयद की थी और मास्क के लाजमी इस्तेमाल और समाजी दूरी की बरकरारी को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई थी। 10 जनवरी को ज़ाली अहकामात की जारी के जरिए इसे 20 जनवरी तक बरकरार रखने का फैसला किया गया था और इन अहकामात के आखिरी दिन चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने जारिया माह के अख्ताम तक यानी 31 जनवरी तक तहदीदात की बरकरारी के अहकाम जारी किए हैं। अहकामात के मुताबिक तेलंगाना में 31 जनवरी तक किसी भी तरह के सियासी, मजहबी इज्तिमा, जलसे व जुलूसों पर मुकम्मल इम्तना आयद रहेगा और शहरियों को मास्क लाजमी इस्तेमाल करना होगा। अलावाजी हुकूमत के अहकामात के मुताबिक अवामी मुकामात पर समाजी फासले की बरकरारी यकीनी बनाई जाना लाजमी है। हुकूमत की जानिब से जारी किए गए अहकामात के मुताबिक कहा जा रहा है कि रियासती हुकूमत ने बेशतर अजला में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफे को नजर में रखते हुए तहदीदात में तोसी का फैसला किया है। 1 जनवरी को जारी किए जाने वाले GOMS नंबर 1 में ये दूसरी तोसी है और ओहदेदारों ने बताया कि अगर इस तोसी के बावजूद कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में कमी वाक़ई नहीं होती है तो ऐसी सूरत में मज़ीद सख्त तहदीदात आयद किए जाएंगे, लेकिन फिलहाल इन तहदीदात में कोई इजाफा नहीं करने का फैसला किया गया है। वाज़ेह है कि हुकूमत की जानिब से GOMS नंबर 1 जारी करने के बाद ही शहरी पुलिस इंतजामिया की जानिब से 81वें कुलहन सनती नुमाइश को दी गई इजाज़त मनसूख करने का फैसला किया गया था, लेकिन बातज़ा महकमे पुलिस की जानिब से हुकूमत के अहकामात के मुताबिक अमलावरी का ऐलान करते हुए तहदीदात के खात्मे की सूरत में नुमाइश के अहिया को मंजूरी देने की बात कही गई, लेकिन तहदीदात में अब की गई तोसी के बाद नुमाइश के अहिया के इम्कानात महूम हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि अहकामात पर सख्त अमलावरी की जाएगी। आर्मू मंडल के मचरला देहात में स्वामी विवेकानंदा सेवा समिति के जेर निगरानी में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं सालगिरह तकरीब को शानदार पैमाने पर मनाया गया। आर्मू मंडल के मुकाम पर विवेकानंदा सेवा समिति की जेर निगरानी में आज सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती तकरीब को शानदार पैमाने पर मनाते हुए इनकी तस्वीर पर फूलमालाएं पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज क़दर पेश की। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने सुभाष चंद्र बोस की जानिब से फ्राहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। इस प्रोग्राम में नैब सरपंच गंगा रेड्डी, विवेकानंदा समिति मेंबरान गंगा रेड्डी, भगत सत्यम रेड्डी, नरसा रेड्डी, करण रेड्डी, सायना राजू, भूपति रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश, 35 यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी। ऐसे तमाम चैनल्स, पोर्टल, वेबसाइट या सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह। इत्तलात व नशरियात वजारत ने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के अहम लोगों के खिलाफ जहरीला
प्रोपगंडा करने वाले 35 यूट्यूब पर मबनी न्यूज चैनलों, 2 वेबसाइट, 2 ट्विटर अकाउंट्स, 2 इंस्टाग्राम अकाउंट्स के साथ एक फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक करने की हिदायत जारी की है। इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी अपूर्वा चंदा ने जुमा को एक खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी इत्तला देते हुए कहा कि इन चैनल्स के जरिए हिंदुस्तान मुखालिफ प्रोपगंडा चलाया जा रहा है। ये तमाम चैनल्स और अकाउंट्स पाकिस्तान से चल रहे थे और बेबुनियाद हिंदुस्तान मुखालिफ खबरें और दीगर मवाद फैला रहे थे। इन्होंने कहा कि ये मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए खतरा है और बिलवास्ता तौर पर इंफॉर्मेशन और न्यूज़ नेटवर्क के जरिए एक तरह से मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की दिफा 69A का इस्तेमाल करते हुए इन्हें ब्लॉक किया गया है। इत्तलात और नशरियात की वजारत के जॉइंट सेक्रेटरी विक्रम साहे ने कहा कि इन 35 यूट्यूब अकाउंट्स के कुल सार्फिन की तादाद 1,21,000 से ज्यादा थी और इनकी वीडियोस को 132 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया था। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अनुराग ठाकुर ने इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे किसी भी चैनल, पोर्टल, वेबसाइट या सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करेगा, मुल्क की तकसीम करेगा और अवाम को गुमराह करेगा। इन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि बड़े ममालिक ने भी इसका नोटिस लिया है और खुद यूट्यूब ने भी ऐसे चैनल्स बंद कर दिए हैं। वजारत की जानिब से दी गई मालूमात के मुताबिक हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसियां इन सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइट पर गहरी नजर रखे हुए थे और इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फौरी कार्रवाई की सिफारिश की थी। बैंड रियासती सारक पुलिस हिरासत में 3 लाख रुपए लागत के सोने के जेवरात जब्त। जिला एसपी श्रीनिवास रेड्डी, एएसपी अनवियाल रेड्डी, डीएसपी सुशांत रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखबारी नुमाइंदों को तफसीलात बताते हुए कहा कि बैंड रियासती सारक 1 साल कब्ल सदाशिव नगर 3.5 लाख रुपए लागत के सोने के जेवरात व रकम लूट कर मुलजिम फरार हो गया था। सदाशिव नगर पुलिस और खुसूसी टीमों को तश्कील देने पर जुमा के दिन पद्माजी वाड़ा क्रॉस रोड के पास मशकूक हालात में महाराष्ट्र नांदेड़ का रहने वाला मंगल ध्यानेश्वर चौहान नामी शख्स को हिरासत में ले लिया। तहकीकात करने पर अखबार जुर्म किया। मजीद 2 मुलजिमीन दिलास प्रकाश चौहान, राम राठौड़ फरार है। मुलजिमीन 3 अफराद इंदलवई पुलिस स्टेशन के हुदूद में सरखे की वारदातें अंजाम दिए। सारख को ध्यानेश्वर चौहान 25 साल तरोड़ा को सदाशिव नगर पुलिस ने दिफात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए रिमांड कर दिया। सदाशिव नगर पुलिस CCS इंस्पेक्टर जॉन रेड्डी, SI शेखर, CCSI उस्मान गणेश, हेड कांस्टेबल नाइट पुलिस कांस्टेबल गणपति की जिला एसपी श्रीनिवास रेड्डी ने सताइश की। एरगटला ताला रामपुर देहात में हेल्थ सर्वे प्रोग्राम को मंडल MPDO व महकमे अहदेदारों ने इफ्तिताह अमल में लाया। बालकुंड हल्का असम्बली एरगटला मंडल तलारामपुर व एरगटला देहात में मुकामी सरपंच भानु प्रसाद जी लावनिया गंगाधर की सदारत में महकमे हेल्थ के अहदेदार, MNM, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी टीचर्स ने घर घर पहुंचकर फीवर सर्वे किया और अलामात पाए जाने वालों को निशानदही करते हुए इन्हें मुफ्त अद्वियात और मेडिकल किट्स की तकसीम अमल में लाने के अलावा मुकामी अवाम की सेहत से मुतालिक मालूमात हासिल की और इन्हें तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फराहम करदा कोविड-19 उसूल और ज़ाबित पर मुकम्मल तौर पर अमलावरी करते हुए खुद और अपने अरकान खानदान की हिफाजत करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सेक्रेटरी जाकिर व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के हम सिलसिले पर। मुत्तहिदा अजला में मुजाहिदे आज़ादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सालगिरह तकरीब को जोश व खरोश के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। शाही निजामाबाद के गांधी चौक के इलाके में पेश आया खौफनाक सड़क हादसा। हादसे में 2 नौजवान बरसरी मौके हलाक। टीआरएस पार्टी को मुस्तहकीम बनाने के लिए तय कमेटी मेंबरान सख्त मेहनत करने का माकलून मंडल में मुनक़दा इजलास से MPP मास्टर प्रभाकर का खिताब। हैदराबाद में रिहाइश पजीर MLC के कविता से SSR तालीमी इदारे चेयरमैन मारैया गौड ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।